वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अनिल ने और अजय ने, और वीडियो का टाइटल है द हिडन जेम ऑफ राजस्थान, खीमसर विलेज। तो चलिए देख लेते हैं ये हिडन जेम। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। After our hectic schedule of Jawai Bandh, where I broke in few of my bones while driving in those rocky jungle, kidding, our next destination was kind of quite opposite to it. We start off from Jawai Bandh in early morning after having a breakfast, passing through those rocky hills which I won't forget for a lifetime. We enjoyed our road trip. In between, we also had a gossip with cows. We at last reached to a small town called Khimsar. Its main attraction is Khimsar Fort, which was built in 1523 AD by Rao Karamji. Some portion of fort is converted to a luxurious hotel which provide royal Rajput hospitality. But we were not interested in the fort. We were interested in the resort they had made and known as Khimsar Village. If you want to stay at Khimsar Village, you still have to book accommodation from the fort. This resort is just 5 km from the fort, and I was personally stunned by the first view of it. If I say that sand dunes are pretty much fake here, it would be too harsh for this place. Of course, please do not compare it with Jaisalmer, where you still see the natural form of it. We were transported inside the resort by a camel cart. As we entered here, the first thing I noticed and wondered was the man-made oasis, which was surrounded by huts and few but lush green trees. On going close to this small pond, I also noticed beautiful ducks and small fishes, which is making this place more alive. It is all brilliantly done. Huts were seemed made of mud, but as we moved inside to a double-story mansion, rooms were pretty good and surely going to give you a 5-star feeling. You're going to notice a mixture of modern and ancient worlds, modern in terms of equipment and ancient in terms of household items, and some artwork, of course purely of Rajasthani touch. But who wants to sit in room? It was midday already, and after we had a small lunch, we started exploring this little place.
वाली फीलिंग आ रही है इसको। लेकिन मुझे जाना वहीं है। ऑब्वियसली, लेकिन डेजर्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मतलब ये रिजॉर्ट बना हुआ है, तो उसमें भी जो रिजॉर्ट बना था बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है ऊपर तो। In evening, we had a high tea at the hut which is at the top of the dune and watched sunset, which was incredible. Rajasthan is known for its temperature fluctuation, and in late evening, temperature suddenly reduced, and also this place was lit by stunning lights. Again, very nicely done. Dinner and services was excellent. There was a variety of veg and non-veg dishes. Morning is equally beautiful here. We woke up before sunrise. It was calm and cool, which also hushed my inner chatter. Breakfast was again good, and it was also a time to move to our next destination. How to reach here by flight? Nearest airport is Jodhpur, just 90 km from here. By buses, there are regular buses from various important towns like Jaipur, Jodhpur, Bikaner, which takes you till Nagaur. From Nagaur, you have to hire a taxi. By train, nearest railway station is at Nagaur. I hope you liked the video. Stay tuned. We'll be taking you to Tal Chhappar in my next episode. Until then, have a wonderful time. Well, today is a day 5 and we are now going to Tal Chhappar on this. Yo! आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा मैं क्या करूं।
बात करूँ अगर आज इस वीडियो की, तो जो रिजॉर्ट था वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उसका जो थीम था वो बहुत अच्छा था। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं तो यही जहन में आता है, व्हाट एन आइडिया सेटिंग। सही बात है। चाहे वो खाना है, चाहे वो जगह है, चाहे वो पहनावा है, आई मीन कुछ भी ले लो यार, बहुत डिफरेंट और यूनिक चीजें। क्योंकि अब पहले मुझे पता है क्या लगा था, जब दूर से नजर आया मुझे लगा शायद वहां से ना डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। मुझे भी शायद यही लगा, लेकिन जब वो अंदर गए उन्होंने जब दिखाया ना, मैं कहा नहीं ये रिजॉर्ट थीम ही इस तरह का बनाया हुआ है। अच्छा वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, एक होता है ना सिर्फ रेगिस्तान का लुक दे देना, सिर्फ रेत नीचे तक होना, लेकिन उन्होंने टीले भी बनाए हुए थे। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई मौसम कि उन्होंने ये सैंड ड्यून्स बनाए कैसे होंगे, लाइक मतलब जैसे अगर हवा चलती है या मतलब बारिश होती है तो उसका भी तो उससे कोई होता होगा ना कि जो रेत है जो मिट्टी है वो। हाँ वो तो इतना मैंने देखा हुआ था कि उन्होंने जो रेत के इर्द गिर्द जो है ना जितना भी एरिया में बाउंड्री उन्होंने बनाई हुई थी थोड़ी सी। हाँ ये मुझे वैसे वीडियो में नजर आया, लेकिन फिर भी व्हाट एन आइडिया सर जी, कि आप जो है एक शहर में जहाँ पे रेगिस्तान नहीं है वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे आप रेगिस्तान का लोगों को आनंद दे रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर जो है जितने भी घर हैं, यानी कि जो आपने रिजॉर्ट्स बनाए हुए छोटे छोटे, वो इस तरह के बनाए हुए हैं कि भाई बाहर से तो वो लगते ऐसे हैं कि जैसे रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के, लेकिन अंदर से वाकई जैसे मैंने जितने भी हट्स देखे हैं इस रिजॉर्ट में, मैं कहूंगी कि जो कच्छ था मुझे काफी ज्यादा उसकी भी याद आई, यानी कि उसमें हम लोगों को जैसे कि हम कहेंगे कि कैमल्स नजर आए और फिर उसके बाद एक जो कैमल कार्ट थी वो भी नजर आई। लेकिन नो डाउट वो बहुत बड़ा एक इवेंट वहां पर होता है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये कि हाँ वो एक छोटा सा हिस्सा जिस तरीके से बनाया गया एक आर्टिफिशियल तरीके से, मैं कहूंगी कि काबिले तारीफ है। और यही चीजें जो होती हैं ये मेन अट्रैक्शन होती है मुझे लगता है टूरिज्म की, कि जब अपने कंट्री में आप इतनी ज्यादा वैरायटी देते हो टूरिस्ट। सही बात। हमने बीच में जैसे देखा फॉरेनर्स भी हमें नजर आए। फिर मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमें दरख्त देखने को मिले वो तो चले जगह ऐसी है कि वहाँ पे दरख्त आप उगा सकते हैं, लेकिन जब हमने देखे थे वो वाले दरख्त जो वहाँ पे कच्छ में थे, वो तो एक पूरी प्लानिंग के साथ किस तरह जमीन के अंदर मिट्टी डालकर फिर उसे कवर करके बनाए गए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा नमी वाली जगह थी, क्योंकि वो है ही नमक से बनी हुई लेक ही तो थी, मतलब लेक क्या मतलब जो जगह है वहां पर नमक ही नमक है। बट ये कि मुझे ऐसी चीजें वाकई में बहुत अट्रैक्ट करती हैं। खैर उन्होंने जो बीच में बोला कि हम लोग जो फोर्ट के अंदर होटल बना हुआ उसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड है, हम लोग तो वो भी देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। बस इसमें ये भी जरूर बताना चाहिए था कि पर नाइट क्या चार्ज किया जाता है इस रिजॉर्ट में, और खाने की वैरायटी मतलब वेज और नॉन वेज दोनों आपको वहां पर मिलती हैं, सुविधाएं आपको मतलब जब सारी मिलती हैं, आपको फैसिलिटीज मिलती है ना, यू नो यू फील रॉयल कि हम लोग किसी ऐसी जगह पर हैं कि हम एंजॉय कर पाते हैं। सही बात है। और जब हम देखते हैं कि यार आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं और पैसे भी हम जब देखते हैं इंडियन जो अच्छे होटल्स हैं या रिजॉर्ट्स हैं वहां पे होते भी नॉर्मल, फिर आपको मजीद अच्छा लगता है। नहीं वैसे मैंने कुछ तो ऐसे देखे हैं कि वाकई में बहुत ये जो थोड़ी हवेली टाइप के और रॉयल वाले होते हैं बहुत महंगे हैं, यू कांट अफोर्ड। नहीं हमने जितने व्लॉग्स देखे हैं उसमें ऐसे भी दिखाए गए हैं जो भाई नॉर्मल है, बंदा अफोर्ड कर सकता है। करी, लेकिन ये जैसे फोर्ट के अंदर वाले हैं या फिर ऐसे होते हैं जो कि हवेली टाइप की लुक देते हैं, वो तो भाई बहुत महंगे हैं, उनको तो बंदा हमारे जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल। और यहाँ पे आप पहुंचने की बात करें तो मैं अगर यहाँ पे बाय ट्रेन ही जाना चाहूंगा मैं बाय प्लेन चली जाऊंगी, ठीक है 90 किलोमीटर दूर है तो कोई बात नहीं, पता नहीं चलेगा और लेकिन खैर ये तो जब जाएंगे तब पता चलेगा, अभी तो हम लोग वैसे ही मस्ती करते रहते हैं। गाइस ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप लोगों में से किसी को खिमसर विलेज के बारे में पता था जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अब हमें दें इजाजत, हमारी वीडियोस चैनल करें वीडियोस, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।